Hare Krishna. So, a different setting in between a killa for your service. So, we are discussing the series of shlokas wherein a fallen yogi's destination is being described by Lord Krishna to Arjun. Today, the 45th verse of the 6th chapter of Bhagavad Gita entitled Dhyana Yoga. Krishna says, Prayatnad ytamanastu yogi samshuddha kilbishah aneka janma sansiddhas tato yati param gatim. And when the yogi engages himself with sincere endeavor in making further progress, being washed of all contaminations, then ultimately achieving perfection after many births of practice, he attains the supreme goal. So we see Krishna has been describing the final destination of an unsuccessful yogi from past 5 verses. In text 40, text 39 was when Arjuna had asked doubt, and text 40 onwards, Krishna's first reply was, Nahi kalyanakrit kaschit durgatim tat gacchati. अगर किसी ने अपने परम कल्याण के लिए मेरे पास आने का प्रयास किया है, उसकी कोई दुर्गति होने की संभावना ही नहीं है, ये भगवान ने कहा था। और पिछले 5 श्लोकों में भगवान बताते आ रहे हैं very scientifically, step by step. You see, we can appreciate the scientificness of scriptures, the scientific logic approach of Krishna in answering Arjuna. अर्जुन ने कहा, भगवान ये तो त्रिशंकु हो गया। तो कृष्ण कहते हैं नहीं, अगर कोई मेरे पास आने का प्रयास करता है, निश्चित रूप से उसका कोई बुरा नहीं हो सकता। फिर भगवान कहते हैं, अगर कोई मेरे पास आने का प्रयास कर रहा है, वो 3 कैटेगरी 6.41 में हमने जो देखा था कि कोई भगवान के पास आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भौतिक इच्छाओं के कारण, तो उसका क्या होता है? He goes to heavenly planets and enjoys for a long time. For someone who's wanting to come to Krishna, not elevated, he doesn't want material attachments, but somehow those attachments have not gone. Then he takes birth in Shrimatam Gehe, very aristocratic family. If he doesn't want material enjoyment and attachment has almost gone, then Shuchinam Gehe, in a very cultured family. If he has really gone ahead in yoga practice and he still has fallen down, then he gets birth in a devotee family. That is where text 42, 43 and 44 we saw how because of Purva Abhyas and Purva Deha, he continues. So Purva Abhyas and Purva Deha refers to many births, and that is what Krishna is telling here. अनेक जन्म संसिद्धस, भगवान के पास जाने का प्रयास ये आज भरती और कल चक्रवर्ती नहीं है, बहुत समय लगेगा। हम कितने करोड़ों जन्मों से माया की सेवा कर रहे हैं, माया के गर्त में हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से पूरा मस्तिष्क भरा हुआ है, और हम सोचते हैं कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं, unless until the final thread of material attachment goes, my Guru Maharaj says that अगर मैं मरते समय मेरे मन में आया, अरे मुझे जलेबी खानी थी, तो वो एक जलेबी खाने के लिए मुझे फिर से जन्म लेना पड़ेगा। That is the stage to which attachments have to go. एक जलेबी की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। That is perfect yoga, perfect Krishna consciousness. So, क्या ये एक जन्म का है सब कुछ? नहीं, अनेक जन्म संसिद्धिस ततो याति पराम गतिम, तब वो परागति को प्राप्त करता है। हम देखते हैं somebody who is a devotee. Devotees are not many in number. Yes.
भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं दैट मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, ऑफ मैनी मैनी पीपल वेरी फ्यू ट्राई टू कम टू मी, बट दोज हु ट्राई टू कम टू मी दे आर रियली द बेस्ट ऑफ मेन। हम देखते हैं, हम यहाँ इस जगह पर बैठे हैं जहां सामने मेरे समुद्र है, आपको दिख रहा है। तो समुद्र में पानी ही पानी है, लहरें ही लहरें हैं, लेकिन वो पानी किसी के काम का नहीं है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। वो कार्गो शिप्स को हिला सकता है, वो बड़े बड़े ऑयल रिग्स को स्थापित कर सकता है, लेकिन वो मेरे काम नहीं आ सकता, पीने के लिए उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमारा शूट लोकेशन में आप थोड़ा नीचे देखें, यहाँ पे एक फ्रेश वाटर स्ट्रीम है। इट्स अ पेरेनियल फ्रेश वाटर स्ट्रीम। 12 महीने यहाँ पे सुंदर निर्मल स्वच्छ जल होता है। ये पानी उस पानी की क्वांटिटी में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों की प्यास बुझा सकता है। उसी प्रकार अ डिवोटी, अ योगी, they might be really less in number, but it is they who actually can make substantial difference in people's lives, in the lives of the consciousness of people who are tormented with lust, anger, greed, pride, envy and illusion. हम देखते हैं ये पानी स्वच्छ है, लेकिन आगे जाकर के वो समुद्र में मिल रहा है। यही है योगा चलित मानस। वो योग पद्धति में आगे आया है, लेकिन फिर भी समुद्र के खारे पानी की तरफ आकर्षित है। So a yogi who is still attached to material enjoyment is exactly like this fresh water stream. He is fresh water stream, but he is still attached to material consciousness. And that's why to take this entire flow reverse is the process of yoga. स्वाभाविक रूप से हर कोई भौतिक जगत में केवल इंद्रिय भोग और मनोभोग की तरफ भाग रहा है। इससे ऑपोजिट एक योगी इंद्रिय भोग और मनोभोग को छोड़ करके भगवान की और समाज की आध्यात्मिक सेवा करने का प्रयास कर रहा है। Isn't it an opposite flow? So this is the process of Krishna consciousness, and it may take lifetimes. It will definitely take lifetimes. But we don't have to give up our endeavor. We don't have to give up our process. That's the main thing. एक बच्चे को जब वो सबसे पहले अपने हाथ में पेंसिल लेकर के वो ABCD लिखना शुरू करता है, वहां से लेकर के उसे PhD करने तक 25 साल लगते हैं। उसके बीच में उसे हर साल 4-5 एग्जाम्स आंसर करनी होती हैं। सो इवन टेकिंग अ PhD, इज इट इजी? नो। हाथ में पेंसिल लेकर ABCD लिखना आ गया, डज इट मीन आई एम अ PhD? नो। उसी प्रकार से आज मैं माला लेकर के हरे कृष्णा कर रहा हूं, डज दैट मीन दैट द एंडेवर हैज बिकम फुल्ली सक्सेसफुल? नो, इट इज a lifetime's process. But the essence is we must not give up our endeavors. At the stage of yoga, it might take lifetimes. At the stage of bhakti, it is definitely a moment's process. अगर मैं अपने जीवन के अंत में भगवान नाम याद कर सकता हूँ, भगवत चेतना में रह सकता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से भगवत धाम जा सकता हूँ। And the classic example to this is श्रीमद् भागवत अजामिल उपाख्यान। अजामिल अपने जीवन में ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 15 साल तक उन्होंने अपने पिताजी की सेवा की सारे योग पद्धतियों में, लेकिन एक वैश्या और एक शूद्र पुरुष के समागम को देखकर उनका मन इतना विचलित हो गया, वो अपनी ब्याहता पत्नी, अपने परिवार को छोड़ करके उस वैश्या के साथ रहने लगे और 88 साल की उम्र तक संतान को जन्म देते रहे। 88 साल की उम्र में उनका 3-4 साल का छोटा बच्चा था जिसका नाम रखा था उन्होंने नारायण।
जब यमदूत उन्हें लेने आए, किसी तरह से पूर्वाभ्यास पूर्व योग उन्होंने अपने बेटे का नाम पुकारा नारायण, और क्योंकि वो एक नारायण नाम पुकारा, तुरंत विष्णुदूत आए और उन्होंने यमदूतों के चंगुल से अजामिल को बचा लिया। So this is the power of chanting one holy name of Lord. But that doesn't give us a license to enjoy indiscriminately, thinking अरे मैं तो मजा मारूंगा, सब कुछ करता रहूंगा, लास्ट में नारायण बोल ही दूंगा, क्या प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं होगा। If we want to cheat Krishna, Krishna is the greatest cheater. Krishna is the greatest in everything. अगर हम भगवान को घुमाना चाहते हैं, भगवान ऐसे हमको घुमाएंगे, हमको पता भी नहीं चलेगा हम कब घूम करके नीचे गिर गए। So endeavor is to always please Krishna. There might be shortcomings, there might be shortfalls. Krishna will take care. Our endeavor is to please Krishna continuously. Thank you very much. Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna